Hi guys, today we are going to start from this line where John and Kate. But today, before starting this video, I have got some question in my mind as to what are the problems which students are facing regarding your English literature examination. Then the first and foremost problem which they are really facing as far as their English literature examination is concerned is that they have to give some uh, give the answer of some questions related to some reference to context given in their question paper, but it becomes a little problematic for them to give the answers of these questions of related to that reference to context if they don't have any knowledge about the meanings of each and every word given in that reference, or if they have got a little idea about the meanings of the each and every sentence given in that reference to context. Fine. So I am repeatedly telling you guys that I have come with a great solution to this problem of yours, because in my videos I am giving the meanings of each and every word, the meanings of each and every word along with the meanings of each and every sentences in each and every chapter of English literature. So I think that is the greatest solution to your problem. And if you like my videos and my way of teaching, my way of explanation, then please like my videos and subscribe and share with your friends. So myself Ritu Tamrit, and today is the third part of my chapter Angel in Disguise, and this is the third part. First two parts I have already uploaded in my previous videos. You could watch the videos, and there also I have given full explanation of each and every word, each and every line, and I mean, my explanation is both in English and Hindi, so that you could have the proper understanding of my videos, of the explanations of the chapters which I am explaining. Fine. So let's start. Where were John and Kate? Asked Mrs. Thompson. थॉमसन ने पूछा कि जॉन और केट कहाँ है, क्योंकि जो मैगी थी उसको तो वो लेके आ गए थे, और उसने पूछा कि जॉन और केट कहाँ है. तो फार्मर जॉन्स टॉस्ड जॉन इनटू हिज वैगन एंड ड्रॉव ऑफ. तो उसने कहा कि थॉमसन ने कहा कि जो फार्मर, एक जॉन बोल के कोई फार्मर था जो इसको जॉन को ले गया था. तो थॉमसन गेव दिस इंफॉर्मेशन टू हिज वाइफ दैट फार्मर जॉन को अपने वैगन में बैठा के ले गया. केटी वेंट होम विथ मिसेस एलिस, एंड केटी द अनदर वन, एक और बहन थी उसकी, उसको मिसेस एलिस ले गई है. बट नोबडी वांटेड पुअर सिक वन, सेंड हर टू द पुअर हाउस वाज द क्राई. और बोला कि ये जो मैगी है इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी, सब बोल रहे थे कि इसको पुअर हाउस में भेज दो. व्हाई डिडंट यू लेट हर गो देन, व्हाट डिड यू ब्रिंग हर हियर फॉर. तो उसने कहा कि तो फिर तुम इसको यहाँ पर क्यों लेके आए, उसको क्यों नहीं तुम पुअर हाउस पे लेके गए हो. तो सी कांट वॉक टू द पुअर हाउस, सेड जो, somebody's arms must carry her, mine are strong enough for that task. तो उसने कहा कि अब वो तो खुद से तो जा नहीं सकती है, उसको कोई तो उठा के लेके जाएगा, और उसका जो आर्म्स है इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको पुअर हाउस में छोड़ के आ सकता है. देन वाई डिडंट यू कीप ऑन, वाई डिड यू स्टॉप हियर, डिमांडेड द वाइफ. तो उसने कहा कि तुम आगे क्यों नहीं गए, कीप ऑन क्यों नहीं तुमने कैरी किया इसको. कीप ऑन का मतलब कैरी करना, मतलब वाई डिडंट यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क, तुमने इसको कैरी क्यों नहीं किया, उसको लेके तुम वहाँ पर रख सकते थे, तुम यहाँ रुक क्यों गए. बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स इरेंड्स. फाइन. तो वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं इसके लिए अभी, सो वो कहता है कि बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फूल्स इरेंड्स. सो हियर लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस इज एन idiom, go on fool's errands. This is an idiom, and what is the meaning of this idiom? The meaning of this idiom is किसी काम को ऐसे काम के लिए को करने के लिए सोचना जिसमें आपको सक्सेस मिलने की चांस आपको बहुत कम है, जिसमें सक्सेस मिलने का चांस आपको बहुत ही कम होता है, उसको बोलते हैं फूल्स इरेंड्स.
तो उसने कहा कि आई एम नॉट एप्ट, मैं एक ऐसे काम के लिए एप्ट नहीं हूँ. एप्ट मतलब होता है सूटेबल, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर सिनोनिम्स फॉर एप्ट. एप्ट का होगा suitable, appropriate, befitting. So three synonyms I have given you for this word apt. और go on fool's errands का मतलब ऐसा कोई काम करने के लिए सोचना जिसमें सक्सेसफुल होने का there is a very little chance that you will become successful in that work. So उसने कहा कि मैं सुटेबल नहीं हूँ किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसमें सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत कम हो. क्यों? क्योंकि पुअर हाउस में ऐसा नहीं है ना कि बस बच्चे को लिया और पुअर हाउस में छोड़ दिया. इट्स नॉट सो इजी. कुछ नियम्स होते हैं. द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन एंड अ परमिट ऑब्टेन्ड. उसके बाद पहले पुअर हाउस में जाने के लिए पहले गार्जियंस से मिलना पड़ता है कि उस पुअर हाउस से कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को एल्म्स हाउस से, एल्म्स हाउस का ये भी मतलब होता है कि जहाँ पुअर बच्चों को रखा जाता है, गरीबों को रखा जाता है. तो वहाँ पर से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो उन बच्चों को अपने लिए गोद लेते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं. तो ऐसे गार्जियंस भी पहले मिलने चाहिए ना, तब जाके कोई उससे फिर उनसे परमिट लेना पड़ता है. there are so many things to do first before you take one child to the poor house. It's not so easy. इसलिए उसने कहा कि मैं कैसे ऐसे बच्चे को उठा के लेके जा सकता हूँ. फाइन. तो यहाँ पर how to exit. सो उसने कहा कि इस तरह से उसको परमिट मिलेगा, उसके बाद वो उस बच्चे को ले जा सकते हैं. नॉट बिफोर दैट. सो देयर वाज नो गेन सेइंग दिस. गेन सेइंग का क्या मतलब हुआ? डिनाई. और इसमें कोई भी डिनाई नहीं है. गेन सेइंग इज अ वर्ड ऑफ विच आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स, सो यू कैन राइट देम डाउन एज वेल. डिनाई करना, किसी के साथ डिसएग्री होना. व्हेन विल यू सी द गार्जियंस. अब वो पूछी कि अब तुम गार्जियंस से कब मिलोगे जाकर. तो तुमको अगर गार्जियन से ही मिलना है तो तुम कब गार्जियन से जाकर मिलोगे. तो उसने कहा कि टुमारो विथ इररिप्रेसिबल इम्पेशंस. उसने एकदम ऐसे इम्पेशंस के साथ, ऐसी अधैर्यता के साथ पूछा जो कि इररिप्रेसिबल था, जो कि जिसको दबाया नहीं जा सकता था. वो चाहती भी तो उसको सबड्यू नहीं कर सकती थी, उसको डिक्रीज नहीं कर सकती थी अपने अधैर्यता को, मतलब अपने इम्पेशंस को. टुमारो, कल. उसने कहा कल. वाई पुट टुमारो. वो बोली कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं. बोले कि कल तुम क्यों जाओगे, आज ही जाओ. गो एट वंस फॉर द परमिट एंड गेट द होल थिंग्स ऑफ योर हैंड्स टू नाइट. आज ही सारा काम खत्म कर दो और कल के लिए कुछ मत छोड़ो. जेन. उसने कहा कि जेन सेट द व्हील राइट विथ एन इम्प्रेसिवनेस ऑफ टोन दैट ग्रेटली सबड्यूड हिज वाइफ. अब उसने कुछ एक ऐसे इफेक्टिवनेस के साथ कहा कि जो उसकी वाइफ को सबड्यू कर दिया, मतलब शांत कर दिया. उसने कहा कि आई रीड इन बाइबल समटाइम्स एंड फाइंड मच सेड अबाउट लिटिल चिल्ड्रन. तो उसने कहा कि मैं बाइबल में कभी कभी पढ़ता हूँ कि और उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है छोटे बच्चों के लिए. हाउ द सेवियर रिब्यूक्ड द डिसाइपल्स. जो सेवियर थे उसमें, जो जीसस क्राइस्ट के लिए बोला जा रहा है, सेवियर जो है थे, उन्होंने कैसे अपने बच्चों, अपने जो डिसाइपल्स, जो उनके प्यूपिल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको कैसे रिब्यूक किया था, एक बार डांटा था. वो वुड नॉट रिसीव देम, जिन्होंने उनको रिसीव नहीं किया था. किसको रिसीव नहीं किया था? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज 81. So next page will be 82. 82. The next page will be 82. Let's. So उन्होंने कहा कि जो सेवियर थे, उन्होंने कैसे अपने डिसाइपल्स को डांटा था जब बच्चों को उन लोगों ने रिसीव नहीं किया था. एंड हाउ ही took them up in his arms and blessed them. और कैसे उन्होंने बच्चों को अपने हाथों में उठाया था और उनको ब्लेस किया था. हाउ ही सेड, हाउ
he said that whosoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded. उन्होंने कहा था कि थॉमसन ने आगे बताया कि उन्होंने कहा था कि जो भी इन बच्चों को कप ऑफ कोल्ड वाटर देगा वो कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं होगा, मतलब उनको भगवान हमेशा रिवॉर्ड देंगे, उनको उनको कुछ अच्छा रिवॉर्ड देंगे, उनको अनरिवॉर्डेड नहीं होंगे, उनको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा. नाउ इट्स अ स्मॉल थिंग फॉर अस टू कीप दिस पुअर मदरलेस लिटिल वन for a single night, to be kind to her for a single night, to make her life comfortable for a single night. और बोला कि अगर कितना अच्छा होगा अगर हम लोग इस पुअर जो मदरलेस चाइल्ड है इसके लिए अगर एक सिंगल नाइट तुम उसको अपने घर पे अगर हम लोग रख लेते हैं, तो ये सिंगल नाइट अगर उसको हम लोग कंफर्टेबल रखते हैं अपने घर में, तो ये कितने बड़े पुण्य का काम होगा. एंड ही स्टार्टेड ट्राइंग टू convince his wife so that the child could stay at home and they could take care of her at least for a single night. The voice of the strong rough man shook and he turned his head away so that the moisture in his eyes might not be seen. और उस strong और rough man का जो voice था वो ट्रेम्बल हो रहा था, उसने there was a kind of trembling in his voice because वो एकदम ऐसे ही स्टार्टेड वीपिंग और ही स्टार्टेड सॉबिंग और उसके आइज़ में मॉइस्चर आ गया था, मतलब उसके आइज़ मतलब वो एकदम रोने के स्टेट में पहुंच गया था और वो अपने मॉइस्ट आइज़ को ही डिड नॉट वांट टू शो हिज मॉइस्ट आइज़ टू हिज वाइफ, इसीलिए उसने अपने आप को घुमा लिया, वो घूम गया. मिसेस थॉमसन डिड नॉट आंसर बट अ सॉफ्ट फीलिंग क्रेप्ट इनटू हर हार्ट. अब मिसेस थॉमसन जो थी वो आंसर तो नहीं की, लेकिन एक उसके मतलब पति जब उसका इतना उसको समझाने की चेष्टा कर रहा था तो एटलीस्ट उसके माथा में दिल में कुछ इसको ये स्ट्राइक हुआ जाके. और शी ऑल्सो स्टार्टेड ट्राइंग टू हैव some soft feelings for that girl. Look at her kindly, Jen. Speak to her kindly, said Joe. अब जो ने फिर आगे कहा कि उस लड़की की तरफ तुम काइंडली देखो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का चेष्टा करो. थिंक ऑफ अ डेड मदर एंड द लोनलीनेस, द पेन, द सोरो दैट मस्ट बी ऑन ऑल हर कमिंग लाइफ. अब उसके डेड मदर के बारे में सोचो, उसका अकेलापन के बारे में सोचो, उसके पेन के बारे में सोचो. लोनलीनेस मीन्स अकेलापन के बारे में सोचो, उसके दुख के बारे में सोचो जो उसको पूरी ज़िंदगी मिलने वाला है. द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट गेव अनवांटेड एलोक्वेंस टू हिज लिप्स. अब उसने कहा आगे कि वो आगे फिर समझाने लगा और कह सो जस्ट द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट. अब उसका हार्ट इतना सॉफ्ट हो चुका था कि वो जो सॉफ्टनेस था उसका हार्ट का, उसने उसको आज तो जब वो बोल रहा था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिज वाइफ, यू नो ही was trying to convince her regarding that child, तो आज उसकी वॉइस में एक अनवांटेड मतलब अनयूजुअल, अनकॉमन. अनवांटेड का सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं अनयूजुअल, अनकॉमन. और एलोक्वेंस उसके लिप्स को, मतलब जब वो बोल रहा था एक अनयूजुअल एलोक्वेंस आ गया था उसके लिप्स में. Now what are the synonyms for eloquence? Eloquence का मतलब होता है when you have got eloquence in your speaking, मतलब आपको मतलब आपकी बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छा, फ्लुएंसी, अच्छे से बोलना. ऑरेटोरी आप उसके लिए लिख सकते हैं, फ्लुएंसी लिख सकते हैं, रिटोरिक लिख सकते हैं. तो आज उसके सेंटेंसेस में, आज उसके स्पीकिंग में जो अपनी वाइफ से जो बात कर रहा था उसमें एक फ्लुएंसी आ गई थी. एक बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी वाइफ को हर चीज़ समझाने में ही वॉज गेटिंग सक्सेस आउट ऑफ दैट, जो कि पहले उसके बातों में नहीं होगा. मिसेस थॉमसन डिड नॉट रिप्लाई. उसने कोई रिप्लाई नहीं किया बट प्रेजेंटली टर्न टुवर्ड्स द लिटिल चैम्बर वेयर हर हस्बैंड हैड डिपोजिटेड मैगी. और वहाँ धीरे से वो उस चैम्बर की तरफ, उस रूम की तरफ गई जहाँ उसके हस्बैंड ने मैगी को रखा हुआ था. एंड पुशिंग ओपन द डोर वेंट क्वाइटली इन. और धीरे से वो उसके अंदर चली गई. जो डिड नॉट फॉलो. जो वहाँ नहीं गया. ही वॉज दैट ही सॉ दैट her state had changed and felt that it would be best to leave her alone with the child. और वो देखा था कि अब उसका state of mind, मतलब उसकी जो वाइफ थी उसका state of mind हल्का चेंज हो गया था. I think वो सोचा कि yes there is some effect on the mind stuff of his wife.
इसीलिए उसको लगा कि ठीक है चलो थोड़ा चेंज आया इसके अंदर, तो अब दोनों को, चाइल्ड और उसकी वाइफ को, दोनों को अकेला छोड़ देते हैं. एंड ही डिड नॉट फॉलो हर, ही लेट हिज वाइफ बी अलोन विद द चाइल्ड. सो ही वेंट टू हिज शॉप, और अपने शॉप दुकान की तरफ चला गया, विच स्टूड नियर द हाउस, जो कि उसके घर के बगल में ही था. एंड वर्कड अंटिल डस्की इवनिंग रिलीज्ड हिम फ्रॉम लेबर. और डस्की इवनिंग तक, मतलब शाम तक, जब थोड़ा हेजी हो जाता है, इवनिंग, हेजी इवनिंग आ जाती है, तो वो उस समय तक काम किया. एंड रिलीज्ड हिज लेबर, अपने लेबर को छोड़ दिया कि जाओ घर चले जाओ. एंड ही ऑल्सो, वो भी अपने घर की तरफ चलने लगा. अ लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चैम्बर विंडोज वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्टेड जॉज अटेंशन ऑन टर्निंग टुवर्ड्स द हाउस. अब जैसे ही वो अपने हाउस की तरफ गया, अ शाइनिंग लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड फ्रॉम द चैम्बर. वो उस रूम से, फ्रॉम द रूम विंडो जहाँ पर कि मैगी को वो रख के आया था. और द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट चीज़ था जो उसको बहुत अट्रैक्ट किया कि चलो उस रूम से जहाँ पर वो मैगी को सुला कर आया था, वहाँ से कोई लाइट आ रही है. इट वॉज अ गुड ओमेन. ओमेन मतलब होता है कि हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा साइन, अच्छा साइन. माने किसी चीज़ का अच्छा या बुरा साइन बोलते हैं कि हाँ भाई ये अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है. तो इट वॉज अ गुड ओमेन, गुड साइन. द पाथ लेड हिम बाय हिज विंडो. एंड अब वो कहाँ गया, धीरे धीरे उस तरफ चलने लगा जहाँ पर उसका चैम्बर था, मैगी का जो चैम्बर था उसकी विंडो की तरफ वो चलने लगा. व्हेन ऑपोजिट ही कुड नॉट हेल्प पॉजिंग टू लुक इन. और जब वो वहाँ आके खड़ा हो गया विंडो के पास, तो ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ फ्रॉम पिपिंग इन, मैंने झांकने से, विंडो के अंदर झांकने से अपने आप को रोक ना सका. इट वॉज नाउ डार्क इनफ आउटसाइड टू स्क्रीन हिम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. अब ये बहुत ही डार्क था. सो ये अब बाहर में इतना डार्क हो चुका था. इट वॉज नाउ डार्क इनफ आउटसाइड टू स्क्रीन हिम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. अब कोई भी उसको ऑब्जर्व करने की चेष्टा अगर करेगा तो वो उसको नहीं देख पाएगा. नोबडी कैन स्क्रीन हिम, नोबडी कैन सी हिम बिकॉज इट वॉज डार्क इनफ आउटसाइड. मैगी ले एंड लिटिल raised on the pillow with the lamp shining full upon her face. और मैगी वहाँ पर एक सोई हुई थी और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी पिलो के का हेल्प लेकर. और एक लैम्प जो था, द लाइट ऑफ दैट लैम्प शाइनिंग ऑन हर फेस, एंड हर फेस वॉज कम्प्लीटली clear. Anybody can see her face from the window with the help of that light. Mrs. Thompson was sitting by a bed. और वो उसकी जो वाइफ थी मिसेस थॉम्सन, वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी, टॉकिंग टू द चाइल्ड. और वो उस लड़की से, बच्ची से बात कर रही थी. बट हर बैक वॉज टुवर्ड्स द विंडो. और उसका जो लेकिन बैक जो था वो विंडो की तरफ था. मतलब जहाँ से जो थॉम्सन है वो जो थॉम्सन जहाँ से पिप इन कर रहा था थ्रू द विंडो, थॉम्सन वॉज पिपिंग इन, उस विंडो की तरफ उसका बैक था. इसीलिए वो उसके मुंह को तो नहीं देख पा रहा था, उसके बैक को देख पा रहा था. सो दैट हर काउंटिनेंस वॉज नॉट सीन. काउंटिनेंस का क्या मतलब हुआ? काउंटिनेंस का मतलब होता है फेस, उसका चेहरा, चेहरा उसका नहीं दिख रहा था. फ्रॉम मैगीज फेस देयरफॉर जॉ. अब मैगी के फेस से, मैगी का फेस तो उसको दिख रहा था, तो अब मैगी के फेस से, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज आई थिंक 82. फाइन, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज फर्स्ट. नाउ फ्रॉम मैगीज फेस, मैगी के चेहरे से, बिकॉज Joe was able to see the face of Maggie only. He was not able to see the face of his wife, so that nobody could understand कि भाई दोनों के बीच क्या बात हो रही है. लेकिन as he was only able to see the face of Maggie, he was trying to make out what kind of conversation must be going in between them. So वो चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि read the character of their intercourse. उनकी जो बातें हो रही थी उसका किस तरह की वो बात कर रहे थे. ही सॉ दैट, इंटरकोर्स का मतलब होता है कि बात करना, इसका डीलिंग्स, उनका जो मतलब नॉट इन द सेंस की बात करना, इन द सेंस की कैसी डीलिंग्स आपस में चल रही थी, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कैसा रिलेशन उनके बीच में अब क्रिएट हो रहा था उनकी आपस की बातचीत में.
he saw that her eyes were intently fixed upon, उस वो देखा कि उसकी जो eyes थी इंटेंटली फिक्स्ड अपॉन हिज वाइफ, उसकी मतलब जो मैगी की जो आइज थी वो पूरी तरह से फिक्स थी उसकी वाइफ के ऊपर. दैट नाउ एंड देन अ फ्यू वर्ड्स केम एज इफ इन आंसर्स फ्रॉम हर लिप्स, और एंड दैट एक्सप्रेशन वाज सैड एंड टेंडर, और बट ही सॉ नथिंग ऑफ द बिटरनेस एंड पेन. और वो देखा कि कुछ कभी कभी, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, समटाइम्स, आप इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं नाउ एंड देन का, कि कुछ वर्ड्स उसके मुंह से आ रहे थे और उसका जो लिप्स जो है वो खुल रहा था कुछ आंसर्स देने के लिए. बट ही वॉज नॉट अनेबल टू लिसन टू देयर टॉक्स. उसको नहीं पता था कि क्या बातें चल रही, बट वो सिर्फ देख रहा था, फेस का एक्सप्रेशंस देख पा रहा था मैगी का. एंड दैट्स व्हाट ही जो राइटर है वो हमको बताना चाह रहे हैं, दैट हर एक्सप्रेशन वॉज सैड. लेकिन हाँ, उसका एक्सप्रेशन जो था वो सैड था और टेंडर था. टेंडर एकदम बहुत कोमल था. बट ही सॉ नथिंग ऑफ बिटरनेस और पेन. लेकिन हाँ, उसके चेहरे पर देयर वाज नॉट पेन, कोई पेन नहीं था उसके चेहरे में. देयर इज नॉट इवन अ लिटिल पेन on her face. A deep drawn breath was followed by one of relief as a weight lifted itself from his heart. अब तो वो तो एकदम से डरा हुआ था ना, अब वो एकदम से डरा हुआ था कि भाई क्या होने वाला है, बिकॉज अब वो अपने शॉप से वापस अपना काम वाम करके घर जाने वाला सोच रहा था उस टाइम पे जब वो शॉप पे था कि अब क्या होगा जब वो घर जाएगा. What kind of a reaction he was going to receive from the side of his wife, because he had got Maggie in the house. तो अब करे तो क्या करे. तो एक deep drawn breath, मतलब एक बहुत ही दबी हुई सांसों से वो घर के लिए गया. और लेकिन अब वो जो उसकी डीप बेटेड ब्रेथ जो था, उसकी जो रुकी हुई सांसें थी वो अब एक रिलीफ में बदल गई, अब एक शांति में बदल गई, जब वो देखा कि दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन तो सुन नहीं पा रहा था, बट अ काइंड ऑफ रिएक्शंस given by Maggie due to the conversation taking place between Maggie and his wife. Oh, he was convinced that yes, a very good relationship was going to be built up between the two people. और एक जो उसके दिल में जो एक पत्थर था, एक वेट था, बहुत जो एक भार था दिल के ऊपर, वो हटता हुआ नजर आ रहा था. अब ऑन एंटरिंग, अब घुसते हुए, अब जैसे वो घुस रहा है तो जॉ डिड नॉट गो इमीडिएटली टू द लिटिल चैम्बर. अब जो जैसे ही वो घर में घुसा वो उस मैगी के रूम की तरफ नहीं गया. हिज हेवी ट्रेड अबाउट द किचन ब्रॉट हिज वाइफ समवॉट हरिडली फ्रॉम द रूम वेयर शी हैड बीन विथ मैगी. अब वो उसका हेवी ट्रेड, माने ट्रेड मतलब चलने को ट्रेड बोलते हैं, और उसकी जो भारी कदमों से जो वो किचन की तरफ गया तो वो उसकी जो वाइफ थी वो समझ गई कि जो आया है. एंड शी हरिडली came out of the chamber, she hurriedly came out of the room where Maggie was there, and she अब उसको जाएगी अपने हस्बैंड को खाना वाना देगी. सो शी केम आउट ऑफ द रूम. जॉ थॉट इट बेस्ट नॉट टू रेफर टू द चाइल्ड नॉर टू मैनिफेस्ट एनी कंसर्न इन रिगार्ड टू हर. अब वो सोचा कि नहीं, अभी कुछ बात नहीं करना ही अच्छा है, और कोई मैनिफेस्ट करना माने किसी अपना कंसर्न उस चाइल्ड के लिए नहीं दिखाना ही अभी अच्छा रहेगा. हाउ सुन विल सपर बी रेडी. अब उसने पूछा कि कितनी देर में खाना तैयार हो जाएगा. राइट सुन, तो उसने कहा कि अभी जस्ट खाना तैयार होने वाला है. बिगिनिंग टू बशल अबाउट, और वो इधर उधर, बशल अबाउट मतलब इधर उधर घूमने लगा. हरिड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे अरे बस अब खाना दो, इधर उधर घूमते रहते हैं भूख के मारे, तो कि भाई खाना दो जल्दी से. तो दिस इज व्हाट बशल अबाउट इज ऑल अबाउट. देयर वाज नो एस्पिरिटी इन हर वॉइस, और उसकी वॉइस में कोई माने कोई क्रूएल्टी नहीं थी, कोई रूडनेस उसके वॉइस में नहीं था, कोई सिवियरिटी उसके वॉइस में नहीं था. सी आई हैव गिवन यू सो मेनी 2 or 3 synonyms for this word asperity in her. Asperity, इस सेंटेंस में मैंने आपको 3 synonyms दे दिए asperity के लिए. After washing from his hands and face the dust and soil of the work, Joe left the kitchen. अपना हाथ पैर धोने के बाद वो किचन को छोड़ दिया and went to the little room, और वहाँ पर मैगी के रूम पे चला गया. pair of large bright eyes looked up at him from the snowy bed. Snowy bed मतलब उसका बिस्तर एकदम सफ़ेद रंग की चादर था उसके बिस्तर पे, और एक उसकी बड़े बड़े आँखों से वो जॉन की तरफ देखने लगी. looked at him tenderly मतलब एकदम कोमलता से, gratefully
बहुत ही उसके मन में उसके लिए रिस्पेक्टफुली वो देखी, प्लीडिंगली कुछ प्लीडिंगली मैंने रिक्वेस्ट के सेंस से देखी। ग्रेटफुल का मतलब हुआ कि बहुत ही कृतज्ञता से, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ग्रेटफुली इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इंग्लिश में इसका क्या, जस्ट मिनट, या फॉर ग्रेटफुली आप इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं थैंकफुली, थैंकफुल के सेंस में कि यस आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है तो आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स यू। सो आप लिख सकते हैं फील्ड विथ ग्रैटिट्यूड, ये भी लिख सकते हैं उसके लिए। और प्लीडिंगली का मतलब एक रिक्वेस्ट के सेंस में उसकी तरफ देखने लगी। हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉजम, और जब वो ऐसे उसकी तरफ देख रही थी तो उसका जो हार्ट था वो एकदम एक्सपैंड हो गया। स्वेल्ड मतलब एक्सपैंड हो गया, मतलब होता है ना कि कुछ अच्छा काम जब आप करते हैं तो आपका दिल एकदम गदगद हो जाता है, और एक्सपैंड हो जाते हैं कि यस वाओ व्हाट अ ग्रेट जॉब वी हैव डन, सो यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो उसको भी ऐसा ही कुछ फील हुआ। विथ वॉट अ क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट्स, और उसका जो हार्ट बीट है जोर जोर से चलने लगा। जॉ sat down and now for the first time examining the thin frame carefully under the lamp light। अब और उसका जो थीन फ्रेम था चेहरे का उसको केयरफुली रीड करने लगा उस लैम्प लाइट में। और अब वो देखा कि कितना अट्रैक्टिव फेस है उसका, कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी वो, एंड फुल ऑफ चाइल्डिश स्वीटनेस, और जिसके अंदर पूरा चाइल्डिश जो छोटे बच्चों में जो स्वीटनेस होता है वो पूरी तरह से उसके अंदर था। विच सफरिंग हैड नॉट बीन एबल टू ऑब्लिटरेट, जिसको सफरिंग, इतनी सफ़र करके वो बच्ची आई थी अपनी ज़िंदगी में, और लेकिन उसका ये प्यारापन को, उसकी इस लवलीनेस को ये जो सफरिंग्स है वो ऑब्लिटरेट नहीं कर पाया था। सो ऑब्लिटरेट का क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, फाइन, उसको वाइप आउट नहीं कर पाया था। सो अगेन आई हैव गिवन यू 2 synonyms फॉर दिस वर्ड ऑब्लिटरेट। योर नेम इज़ मैगी, राइट, उसने कहा कि तुम्हारा नाम मैगी है, सही बात है। तो एज ही सेट डाउन एंड टुक हर सॉफ्ट लिटिल हैंड इन हिज, उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए वो कहा तुम्हारा नाम मैगी है, राइट। तो यस सर, बोली हाँ। हर वॉइस स्ट्रक अ कोड विद दैट क्विवर्ड इन अ लो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक, और उसका जो वॉइस था वो एक तार से, मतलब एक जैसे तार में जैसे हम लोग वो गिटार बजाते हैं तो कैसे एक झनकार निकलती है उसमें से, तो उसकी वॉइस में से भी एक ऐसा झनकार निकल रहा था। क्विवर्ड मतलब वाइब्रेटिंग, क्विवर्ड मतलब होता है वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेट कर रहा था एक स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक की तरह। हैव यू बीन सिक लॉन्ग, तो उसने कहा कि तुम क्या बहुत दिनों से बीमार हो। यस सर। व्हाट अ स्वीट पेशेंस वाज इन हर टोन, और उसके टोन में कितना पेशेंस था जब वो बोली यस सर मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, तो कितना पेशेंस के साथ वो बोली कि यस वो बहुत दिन से बीमार है। हैज़ डॉक्टर बीन टू सी यू, क्या तुम्हें डॉक्टर देखने कभी आया है। तो वो क्या बोलती है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज 83, सो वी हैव टू गो टू 84। तो फिर उसने कहा कि ही यूज टू कम, वो पहले आया करता था बट नॉट लेटली, बट अभी हाल फिलहाल में तो वो नहीं आया है। नो सर, ओ सॉरी, उसने कहा कि ही यूज टू कम, मैगी ने कहा, लेकिन उसके बाद जॉ ने कहा कि नॉट लेटली, क्या अभी रिसेंटली वो नहीं आया है। तो उसने कहा कि नो सर। हैव यू एनी पेन, तुमको कोई पेन है। समटाइम्स, कभी कभी होता है। व्हेन हैड यू पेन, कब तुमको पेन था। इन द मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग साइड एक्ट, उसने कहा कि इस मॉर्निंग में मेरा जो साइड था वो एक्ट हो रहा था। एंड माई बैक हर्ट व्हेन यू कैरिड मी, और मेरा जो पीछे का जो पोर्शन है, बैक है, वो जो है दर्द कर रहा था क्योंकि जैसे ही आपने मुझे कैरी किया था। इट हर्ट्स यू टू बी लिफ्टेड और मूव्ड अबाउट, इसका मतलब है कि तुमको दुखता है जब तुमको कोई उठाता है, या फिर तुमको जब तुम कोई और तुमको मूव करवाता है तब तुमको दुखता है। तो बोली यस। योर साइड डजंट एक नाउ, उसने पूछा कि तुम्हारा साइड अब तो नहीं दुख रहा है। बोली नहीं। नो सर। डज इट एक अ ग्रेट डील, क्या वो बहुत जोर से दुखता है। यस सर, हाँ बहुत जोर से दुखता है। बट इट हैजंट एक्ट एनी सिंस आई हैव ऑन दिस सॉफ्ट बेड, बोल रही है कि हाँ बहुत जोर से तो दिखता है लेकिन अब बहुत देरी से ये दर्द मेरे को नहीं है जब से मैं ये सॉफ्ट बेड में आई हूँ। द सॉफ्ट बेड फील्स गुड, ये सॉफ्ट बेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत आराम दे रहा है। ओ यस सर, सो गुड। व्हाट अ सेटिस्फेक्शन मिंगल्ड विथ ग्रेटिट्यूड वाज इन हर वॉइस, और कितना सेटिस्फेक्शन था, संतोष था उसकी
उसके आवाज़ में, जो कि मिंगल्ड था, मिंगल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थैंकफुलनेस, उसके वॉइस में एक थैंकफुलनेस था, और मिंगल्ड मतलब मिला हुआ था दोनों, सेटिस्फेक्शन और थैंकफुल उसके वॉइस में। सपर इज़ रेडी सेड मिसेस थॉम्सन लुकिंग इनटू द रूम अ लिटिल वाइल आफ्टरवर्ड्स। और उसके थोड़ी देर के बाद मिसेस थॉम्सन केम एंड शी told her husband that yes, the supper was ready. Joe glanced from his wife's face to that of Maggie. She understood him and answered. So यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग आज पढ़ते हैं afterwards तक, और Joe glanced from his wife's face यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो पढ़ते रहिए, मेरे क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और I would really feel good if you comment on my videos, and if there are any flaws or if anything else is required from my part, so feel free to comment upon my videos, feel free to give me suggestions, and I would also feel free to take up your suggestions and include those suggestions in my videos in my way of teaching. Thank you.